बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पांडेश्वर में पानी टंकी के ढहने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 किशोर बाल बचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण यह हादसा हुआ। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना पांडेश्वर के ज्वालभांगा गांव की है। ईसीएल के बांकोला क्षेत्र के ज्वालभांगा पैच के पास बावरी पाड़ा में निवासियों की सुविधा के लिए हाल ही में ईसीएल की पहल पर पानी टंकी बनाया गया था। 2000 लीटर पानी की क्षमता वाले इसको बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहाने और अन्य कार्यों के लिए इस जलाशय का निर्माण किया गया था। 10 दिन पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। सोमवार को टंकी में पानी भरा गया। मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे अचानक टंकी की एक दीवार धड़ाम से ढह गई। उस समय वहां 14 साल के 2 किशोर नहा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों किशोर बाल बचे। लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। কি ঘটনা হয়েছে, আমি এখানে ছিলাম, এই দুটো ছেলে চান করছিল আর আমি ওইখানে ছিলাম। হঠাৎ করে দেখছি টাঙ্কা ছেড়ে পড়ে গেল, এতটা জল হয়ে গেল, এই ছেলেগুলো মারা যেত। তো এই টাঙ্কা এরা ভালো করে করতে পারে নাই, তো এই মাটি ভরে পথে টাঙ্কা করেছে। কারা করেছে টাঙ্কি? কারা করেছে এখানে প্যাচের থেকে করা হয়েছে। কারা করেছে ঠিকাদার করেছে, মানে প্যাচ থেকে করা হয়েছে। এসএল প্যাচ থেকে করা হয়েছে। হ্যাঁ, এসএল প্যাচ। তোমাদের এখন কি দাবি রয়েছে? কি দাবি রয়েছে, ছেলেগুলা এরকম দুর্ঘটনা করে পথে বাকি ভালো করে যদি না বানায় তো ছেলেগুলো মারা যাবে। তো এরকম করে গ্রামের লোক প্রত্যেকেই তো মারা যাবে। আর এই যা দুর্ঘটনা হয় না, যদি হয়ে যেত তাহলে কি হইতো? তোমার নাম? আমার নাম অনিল বাউরি। কি হয়েছে এখানে? এখানে বসে স্নান করছিলাম, তো তার মধ্যে দুদিকে ফুটে পড়তে গোটায় জলের ইয়েতে জল চলে এত হাইটে জল ছিল, গোটায় মানে ছোটকে পড়ে গেল। তারপর আমার দুদিন এখানে পড়ে গেল। টাঙ্কিটা ভাঙলো কিভাবে? জলের প্রেসারে। টাঙ্কাটা ভালো করে করতে পারে না, মাটি দিয়ে ভরে। টাঙ্কিটা কারা বানিয়েছিল? এসএল থেকে। তোমার নাম? আমার नाम विजय बाउरी। अतिक्रमण अभियान के विरोध में मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने अब दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। आसनसोल में GT रोड पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल के सामने से लगभग 2 साल पहले 41 दुकानदारों को हटाया गया था, जिन्हें पुनर्वास का वादा किया गया था। TMC के श्रमिक संगठन INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्योंकि केवल एक दुकानदार को पुनर्वास मिला, जबकि बाकी 40 दुकानदार 2 साल से भटक रहे हैं। अहलुवालिया ने मेयर विधान उपाध्याय और डिप्टी मेयर वसीमुल हक पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर वसीमुल हक ने दावा किया कि दुकानदारों को रविंद्र भवन के सामने दुकानें दी गई थी, लेकिन कई ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया और कहा कि भविष्य में परियोजनाओं के तहत पुनर्वास पर विचार होगा। আজকে 1.5-2 বছর আগে এই জায়গাটাতে প্রায় 41 জন দোকানদাররা ছিল। তারা কেউ 4-5টা গাছ বিক্রি করতো। তারপরে আপনার অনেকগুলো মোটরসাইকেল মিস্ত্রি ছিল, অনেকগুলো চা দোকান ছিল, তারপরে আপনার ওই হাড়িয়া দোকান ছিল, তারপরে আপনার মানে বিভিন্ন রকম পাখি দোকান ছিল, অনেক কিছু ব্যাপার এখানে ছিল। 41 জন লোক ছিল। 41 জন লোককে পুনর্বাসন ছাড়াই আসানসোল নগর নিগমের अधिकारीরা হাঁটিয়ে দিলেন।
হাঁটিয়ে দিয়ে বললে আমরা পুনর্বাসন করবো। 2 বছর হয়ে গেলে আজ পর্যন্ত পুনর্বাসন হয়নি। আর সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, 41 জন লোক মধ্যে একজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কার শর্তে? কী ব্যাপার, কি খেলা হয়েছে কি আসানসোল পুরো এইটা 41 জন লোকের রোজগার কেড়ে একজন লোককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো এই পার্কটা একজন লোক, আসানসোল নার্সারি বলে একজন লোককে দিয়ে দেওয়া হলো। কেন দেওয়া হলো? এখানে দুর্নীতি হয়েছে। 41 জন বাদ দিয়ে একজন লোকে দোকান অ্যালট করা হয়েছে দুটা, পুরো পার্কটা ওকে দিয়ে দেওয়া হলো। মেয়র সাহেব কি জানেন না? ডেপুটি মেয়র আসানসোলে মসিউমালা জানে না? এখানকার বাকি কোনো নেতারা জানেন না যে কীভাবে দেওয়া হয়েছে? এই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া দরকার। কেন এই দুর্নীতি হয়েছে? নিশ্চয়ের পেছনে দুর্নীতি হয়েছে। আসানসোল নার্সারি কি করে এই জায়গাটা পেল? 41 জন থেকে 40 জন বাদ হয়ে গেল, একজন লোক দোকান পেল। এটা তো আশ্চর্যের ব্যাপার। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्न प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक सिविक पुलिसकर्मी के खिलाफ ट्रक ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सोमवार रात को सिविक वॉलंटियर सोमनाथ मंडल ने एक ट्रक को रोककर ड्राइवर से पैसे की मांग की। ड्राइवर द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर सोमनाथ ने अपनी वर्दी उतारकर ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। इस पूरी घटना का वीडियो ट्रक ड्राइवर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने सिविक वॉलंटियर सोमनाथ मंडल को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक वीजी सतीश ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो गई है। सोमनाथ मंडल को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। मंगलवार को रानीगंज विधानसभा से पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक आधारित कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ। रानीगंज ब्लॉक में आयोजित ये पहला कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो रानीगंज के लक्ष्मी वाटिका कम्युनिटी हॉल में हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला चेयरमैन व जमुड़िया विधायक हरिराम सिंह सहित अन्य ब्लॉक तृणमूल नेतृत्व मौजूद थे। जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कार्यकर्ताओं को 2026 के विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा से भारी मतों से जीत हासिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा के जो वार्ड पीछे रह गए, उन्हें जीतकर वापस लाना होगा। जिला नेतृत्व हर वार्ड में कार्य सूची तैयार करेगा। जिन वार्डों में वोट में कमी रही, वहां के पार्षदों और वार्ड अध्यक्षों को जवाबदेही देनी होगी। उल्लेखनीय है कि 15 जून तक पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 18 कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ से संडले जाने वाली सड़क विवेकानंद सरणी पर पांचमुहा रेल ब्रिज के पास आखिरकार आसनसोल नगर निगम ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है। रेल प्रशासन द्वारा पुल की मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसके चलते एक लेन बंद है। हल्की बारिश में पानी जमा होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस सड़क से प्रतिदिन कई स्कूलों के छात्र छात्राएं आवागमन करते हैं। साथ ही इसी रास्ते से जिला शासक के कार्यालय तक जाना पड़ता है। जाम से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नाले की मरम्मत के बाद राहगीरों का मानना है कि हल्की बारिश में जल जमाव की समस्या कम होगी।
এটা? এটা আমাদের কর্পোরেশন থেকে পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। মানে বৃষ্টিতে প্রচুর জল উঠে যাচ্ছে, হালকা বৃষ্টি হলেও জল উঠে যাচ্ছিল, তো হেড অফিস থেকে অর্ডার দিল আমাদেরকে কি এই জায়গায় পরিষ্কার করতে হবে। মেয়র সাহেব বললো, চেয়ারম্যান সাহেব বললো, ডেপুটি মেয়র সাহেব বললো। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছিল যে মানে হালকা জল হলে পরে এটা রেলের ইয়ের থেকে করানো, মানে রেলের জায়গা তো অ্যাকচুয়ালি, তো তারা কি কোনো রকমভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছিল না? রেল তো কোনো কিছু করলো না, আমাদেরকে কর্পোরেশন থেকেই আমরা এই ট্রেনটা প্রত্যেকবার আমরা কর্পোরেশন থেকেই করা হয়, রেল থেকে কোনো ই করা হয় না। এটা দেখা যাচ্ছে যে প্রায় কতদিন পর্যন্ত লাগবে এই কাজে? এটা আমরা আজ থেকে জেসিবি কালকে হেড অফিসে যেয়ে বলেছি কি আজ থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি, আর 2-3 দিন লাগবে কাজ পুরো কমপ্লিট করতে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে মানে এতটাই পলি জমে রয়েছে যে মানে মানুষের যেরকমভাবে অসাও হচ্ছিল যে একটু বৃষ্টি হলে পরে কিন্তু একবারে কোমর পর্যন্ত জল জমে যেত। এটাতে কি জল জমাটা কি কমবে? নিশ্চয়ই কমবে, যখন নিচের তলার মাটিগুলো বার হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই একটা ডিপ হয়ে গেছে ড্রেনটা, জল আর জমবে না আশা করি। আপনার নাম? আমার নাম ডগলাস ল্যাম্পো। কি মানে কি? আমি এসআই আছি। बाराबनी के दुमहानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत चरणपुर निमचा में काली पूजा के अवसर पर एक नया शेड बनाया गया है, जिसका उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इसके अलावा पास में ही षष्ठी मास के दूसरे मंगलवार को होने वाली एक प्राचीन काली पूजा भी आयोजित की गई। इस अवसर पर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने पूजा की, साथ ही बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह और स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं पुचड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत केलेजोड़ा फ्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए एक नया शेड बनाया जाएगा, जिसके लिए नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में भी विधायक विधान उपाध्याय, बाराबनी थाना प्रभारी देवेंद्र मुखर्जी, पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह और समाजसेवी करुणा दत्त उपस्थित थे। প্রতি বছরে পুজোতে আমরা আসি, যেহেতু এই পুজোটা অনেক বড় পুজো, মেলা হয়, প্রচুর মানুষ আসে, প্রায় 150-র উপরে, মানে পাঠা বলিও হয়। তো এই মন্দিরে ওদের যেগুলো ডিমান্ড ছিল আমরা চেষ্টা করছি যতগুলো করার। আজকে যেমন উদ্বোধন করলাম আমরা, একটা শেড আছে, মানে ওদের যেখানে স্টেজটা সেটা শেড হয়েছে, প্লাস সাবমার্সিবল পাম্পও লেগে গেছে, কালকে হয়তো পাইপ লাগানো হবে। রাস্তা ফাস্তা সবই এখানে হয়ে গেছে। এখন মা কালীর এখানে একটা হাই মার্কস লাইটের দরকার আছে, সেটা আমরা করে দেবো। সব কিছুই প্রায় কমপ্লিট। मंगलवार को बाराबनी थाना परिसर में सर्कल इंस्पेक्टर अशोक सिंह महापात्र की अध्यक्षता में बखराबनी ब्लॉक की सभी मस्जिदों के इमाम और सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाराबनी थाना के प्रभारी अधिकारी देवेंद्र मुखर्जी, बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह और थाना के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बाराबनी क्षेत्र में सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक पर आपत्तिजनक और भड़काऊ मंतव्यों को रोकने पर चर्चा करना था। क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कुछ लोग फेसबुक पर इस तरह की टिप्पणियां लिखकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इस संबंध में दुमहानी बाजार सुल्तानपाड़ा मस्जिद के इमाम से भी बात की गई, जिन्होंने इस तरह के मंतव्यों को रोकने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। सर्कल इंस्पेक्टर ने सभी से अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखें और पुलिस को सूचित करें, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे।
बात यही हुआ कि हमारे बाराबानी थाने के बड़े बाबू बड़े वसी भी थे और हमारे पंचायत के सारे लोग थे और सारा उलमा किराम थे। जो आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान लेकर के जो एक वायरल हो रहा है, ये तो हमारा हिंदुस्तान है, इस मुल्क का हम रहने वाले हैं। इस मुल्क के लिए हम जान देने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, ये हमारे ये देश है, हम इसको अच्छी तरह इसको मानते हैं। ये हमारा, इसके लिए हमको अगर कुछ करना पड़े तो हम करेंगे। कोई भी ऐसा कोई काम अगर कोई करेगा तो उसको हम थाना वाले के पास रिपोर्ट देंगे और उसका पुलिसमान होगा, यानी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। अगर ज़्यादा इसमें होगा, फिर इतना खतरनाक कार्रवाई होगा कि फिर उसको कभी जामीन नहीं होगा। बड़ा बाबू साहब ये बोले, एसपी भी बोले ये बात कि अगर ऐसा होगा तो बहुत खतरनाक। और एक भी बात बोला कि अगर कोई हिंदू आपके धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसके बारे में आप हमको बोल सकते हैं, हम भी उसका कार्रवाई करेंगे। ना आप किसी गैर को यानी हिंदू के यानी देव देवता के बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे, ना आपके देव देवता के बारे में कोई बुरा भला कहें। जब हम लोग आपस में भाई भाई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आज आपस में हम लोग कुछ ऐसा आदमी जो बीच में आ जा रहा है, जो हम लोग के बीच में तोड़ पैदा करना चाहते हैं, जोड़ पैदा नहीं करना चाहते, तो हम लोग सब मिलकर जोड़ करके रहें, हिंदुस्तान को आबाद रखें। और इसको जितना तरक्की हो उतना हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है। हमारा जो प्रधानमंत्री जो हमारे लिए सारे मुल्क को, कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, सभी के लिए, अच्छाई के लिए हर काम को अंजाम देते हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।